what is the meaning of abstract? Defining abstract. What are the steps you will take when writing an abstract? From which language this word has been taken? What is the use of an abstract? So these questions will be answered today in abstract. What are the types of abstract? Ma'am, descriptive and informative. So this was not there in your first semester, but then this is in your syllabus. When you look at the term abstract, what does it mean? No. Abstract एक वर्ड जो लिटरेरी मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपने देखा कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, तो वो कैसा पेंटिंग होता है? If you look at the term, the meaning of abstract, the literal meaning of abstract, बताइए. The meaning of abstract. Can you see the screen? Can you see the screen? Now read what is written. An abstract is existing in thought or as an idea, but not having a physical or concrete existence. For example, a painting can convey love and beauty without any form or figure. Supposing you see the painting of sunrise, you will not see any sun, but then you will see all orange, and the river is also reflecting the sun. It does not have a form, but it gives you an idea. So abstract is the same thing. So we'll get to know all these things and try to take notes, because something is there in your content. A lot of things are there which is not in your content, but I am teaching you. So be prepared to write down the notes. Abstract, writing an abstract. When you are asked to write a report, after writing the report, you will have to write the abstract. It is a continuation process of first the report, first the article, and then the report. Often when asked to write a report or article, you will be required to include an abstract. तो जब कभी आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाएगा या आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट लिखना अनिवार्य है. It is necessary to write an abstract.
दिस इज़ यूजुअली अ वेरी कंसाइज समरी. ये बहुत ही छोटा कंसाइज समरी होता है आपके कंप्लीट आर्टिकल का. दो समरी इज़ नॉट द राइट वर्ड ओवर हियर. समरी का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल का शॉर्ट पार्ट बनाना, लेकिन वो भी स्टोरी बनाना. उसका बिगिनिंग होता है, उसका एंड होता है. बट एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग डिफरेंट. So, Ma'am, just like six size. please don't disturb. Summary of what the report or article is about and is usually placed before the body of your writing. और ये सबसे बाद में आप लिखते हैं. एब्स्ट्रैक्ट सबसे बाद में लिखते हैं. आपके आर्टिकल लिखने के बाद, आपका रिपोर्ट लिखने के बाद आप लिखते हैं, लिखने के बाद लिखते हैं. लेकिन पढ़ने वाले जो होते हैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ते हैं, इसलिए कि वो सबसे पहले आप डालते हैं उसको, उसके बाद आपकी रिपोर्ट होती है. क्यों ऐसा होता है ये आपको हम बताते हैं. सो द एब्स्ट्रैक्ट कैन बी रेड टू गेट अ क्विक ओवरव्यू. जो भी आपने लिखा है रिपोर्ट में, जो भी आपने लिखा है अपने प्रोजेक्ट में, उसका एक निचोड़ होता है, ओवरव्यू होता है इन एन एब्स्ट्रैक्ट. आफ्टर रीडिंग योर एब्स्ट्रैक्ट, द पर्सन विल डिसाइड whether he will read your article or not. So abstracts are a passport or a gateway whether your article will be read by the reader or not. An abstract should arouse interest in the reader. एक एब्स्ट्रैक्ट को क्यूरियोसिटी जगानी होती है, जिज्ञासा जगानी होती है रीडर के मन में, ताकि वो पूरी आर्टिकल को पढ़ने के लिए आप उसको परसुएड करें. एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ परसुएसिव राइटिंग wherein your writing should be as such that you are convincing the reader to read this. An abstract will be not more than 1 or 2 paragraphs. It should be very, very, very concise. And it will tell the reader about what your report is. आपने क्या रिपोर्ट लिखा है, आपने क्या आर्टिकल लिखा है, वो सबका की पॉइंट्स आप एब्स्ट्रैक्ट में डालेंगे, ताकि वो आपका पढ़ के, आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपका वो आर्टिकल वो पढ़े कि नहीं पढ़े. आप लॉग इन किए हुए? नोट्स आप बनाते जाइए. डोंट बी डिपेंडेंट कि लिंक शेयर नहीं किया गया, ये शेयर नहीं हुआ, वो PDF शेयर नहीं हुआ. किताब आपके पास ऑलरेडी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, उसको आप नोट करिए, नहीं तो आप नहीं समझिएगा. यूँ बैठने से अगर हम एब्स्ट्रैक्ट समझ लेते तो हम समझ ही लेते. इट इज़ नॉट अ कहानी. आई डू नॉट सी यू एवर टेकिंग नोट्स. कभी हमने देखा ही नहीं, एकदम सुयश अग्रवाल बैठ के लिखता रहता है नोट्स, बाकी सब ऐसे ही बैठे. मैंने 10 मिनट 15 मिनट जो कहा, आपने कुछ भी नहीं लिखा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मत लिखिए. तो मैंने डेफिनेशन बताया आपको, मैंने बताया मतलब माय ओन डेफिनेशन बताया, जो कि आपको लिखना चाहिए था लेकिन आपने नहीं लिखा. जो नोट्स नहीं बना सकता वो पढ़ाई क्या करेगा. नाउ द डेफिनेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट. द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. जिस तरह से मेमोरेंडम एक लैटिन वर्ड से आता है, उसी तरह से abstract also comes from a Latin word abstractum, which means condensed. मतलब बिल्कुल सी कोई गाढ़ी चीज़, rich, condensed,
हेवी, मतलब कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि चंद शब्दों में आप पूरी कहानी आपने कह दी, आपने हाईलाइट कर दिया, ताकि रीडर कन्विंस हो जाए कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है उसको आप कन्विंसिंगली आप लिख रहे हैं, देन द रीडर विल डेफिनेटली रीड योर आर्टिकल। नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट तो एक पासपोर्ट है, गेटवे है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं और क्वेश्चंस लिखते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का, पहली लाइन देख के समझ में आ जाता है कि बंदे ने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पहला लाइन डिसाइड कर देता है कि आगे क्या है कहानी। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो द डिसाइडिंग फैक्टर। द टर्म इज एब्स्ट्रैक्टम फ्रॉम लैटिन which means condensed। अब आपने नाम तो सुना, कंडेंस्ड मिल्क का नाम सुना होगा आपने, सुना है ना? नहीं सुना? कंडेंस्ड मिल्क, वो इतना सा डिब्बा में रहता है कंडेंस्ड मिल्क, जो कितना रिच रहता है। दूध तो पतला होता है, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क, अगर 1 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क निकाले, दैट इज इक्वल टू 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। तो आप समझिए कि आपका एब्स्ट्रैक्ट कितना कंडेंस्ड होना चाहिए। मीन्स अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग। नाउ वी कम टू द कैटेगरीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, द डिस्क्रिप्टिव एंड द इंफॉर्मेटिव। As you know, you have learned that there are 4 writing styles, and the abstract can be either descriptive, you can describe it, or it can be just an informative. And the type you are going to use on the basis of what your article is. आपका आर्टिकल क्या है, आपका रिपोर्ट क्या है, उसके बेसिस पे आप बनाएंगे अपना abstract. You will decide whether it will be an abstract of description or whether it will be an abstract of information. The definition after that. Why is an abstract written? Why do we write an abstract? It means on your subject, what type of report you have written. Your abstract will be dependent on what your article is, whether it is descriptive style or whether it's informative style. और your discipline area का एक language लिखने का तरीका है on your subject. It totally depends on what kind of report you have written, what kind of article you have written, what type of story you have written. Why is it important to write an abstract? Why do we write an abstract? Abstract writing is important. They are a very important part of a report and research paper, and sometimes academic assignments. When you will be writing a thesis, when you will be writing a synopsis, then it will be necessary for you to write an abstract. Project reports, thesis, synopsis, वो सब के लिए आपको जो आप सबमिट करते हैं, people submit their thesis when they are doing their doctors, PhD, सब में आपको abstract लिखना होता है. Otherwise abstract you also can write an abstract about just about anything, any report which you have written.
The abstract is often the last item that you write. मतलब पहले आप आर्टिकल लिखते हैं, पहले रिटन वर्क आप कंप्लीट कर लेते हैं. After completing your written work, the last thing which you will write is an abstract. But the first thing people read when they want to have a quick overview of the whole paper. तो आप तो सबसे आखिर में लिखते हैं, लेकिन पढ़ने वाले सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट सामने नजर आते हैं. When you open your manual, जो किताब मिली है बिजनेस इंग्लिश की, उसको खोल के देखेंगे तो सबसे पहले क्या नजर आता है? खोल के देखिए, खोलिए देखिए क्या है. कुछ भी नहीं है. क्या है? What is the first thing which you see? डायरेक्टर सर का मैसेज. मैसेज कहिए, प्रोलॉग कहिए, एब्स्ट्रैक्ट कहिए. दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट. सबसे पहले जो कोई किताब खोलते हैं आप, कोई कहानी की किताब, कोई टेक्स्ट आप देखिएगा प्रोलॉग लिखा रहता है ना. सबसे पहले फर्स्ट पेज, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट. So the abstract is often the last item that you write, but the first thing people read when they want to have a quick overview of the paper. और एब्स्ट्रैक्ट और क्या है? एक क्विक ओवरव्यू भी है कि आपने रिपोर्ट क्या लिखा है, उसका मेन, व्हाट इज योर गिव अवे ऑफ द मेन आइटम. वी सजेस्ट यू लीव राइटिंग द एब्स्ट्रैक्ट टू द एंड. इसलिए सजेशन दिया जाता है कि पहले आर्टिकल लिख लो, रिपोर्ट लिख लो, स्टोरी लिख लो, सबसे बाद में राइट द एब्स्ट्रैक्ट, बिकॉज then you will know what you have to write, because you will have a clearer picture of all of your findings. Now the technical know-how. How do I write an abstract? I suggest you write the bulleted information. स्क्रीनशॉट का कोई काम नहीं आएगा आपको जब तक कि आप लिखना शुरू नहीं करेंगे. कोई स्क्रीनशॉट, कोई पीडीएफ शेयरिंग बेकार हो जाता है. यू नेवर रीड, पीपल नेवर रीड दिस. जब तक कि आप खुद लिखना शुरू नहीं कीजिएगा. बिजनेस इंग्लिश रिक्वायर्स हार्ड वर्क. स्क्रीनशॉट कर लिया, पीडीएफ शेयर कर लिया, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. Now the guidelines of how to write an abstract, and of course also the technical know-how. First point. First reread your paper, your report for an overview. Then read each section and condense the information in each down to 1 or 2 sentences. जितने भी sections आपने लिखे हैं, उन सारे sections को 1 या 2 sentence में लिख लीजिए. तो मतलब क्या हुआ? मेन एलिमेंट्स आपको निकाल लेना है एक हर सेक्शन का. एंड हाउ मेनी सेंटेंसेस? हाउ मेनी? 10. वन और 2 सेंटेंसेस. आप कहाँ देख रहे हैं? आप 10 कहाँ नजर आ गया आपको? Read the first instruction.
अभी आप पूछने वाले हैं आप लोगों को, व्हाट गाइडलाइंस विल यू टेक व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट. सेकेंड इज, नेक्स्ट रीड दी सेंटेंसेज अगेन टू इंश्योर दैट दे कवर द मेजर पॉइंट्स इन अ पेपर. फिर से पढ़िए और इंश्योर हो जाइए कि मेजर पॉइंट्स में कवर हो रहा है कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है. थर्ड पॉइंट, ensure that you have written something for each of the key points. और हर एक की पॉइंट का आपने एक दो सेंटेंसेस बनाया है भी कि नहीं. Either it is descriptive or informative. Next point, check the word length and further reduce your words if necessary by cutting out unnecessary words or rewriting. फिर चेक करिए कि बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है, और कुछ वर्ड्स को फिर से डिलीट कट कीजिए, डिलीट कीजिए. Ensure that your abstract is simply structured, simple sentences, exact, clear, concrete. Finished? It should be clearly expressed. Succinct. Check the word length and further reduce your words if necessary by cutting out unnecessary words or rewriting some of the sentences into a single, more succinct sentences. Succinct का मतलब होता है expressing clearly. And the last is edit for flow and expression. मतलब it should be coherent. मतलब it should be in a flow. एक से कनेक्ट दूसरा सेंटेंस से कनेक्ट तीसरा, कोहेरेंट होना चाहिए. इन द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपने जाना है कि व्हाट इज़ कोहेरेंट, व्हाट इज़ कंसाइज, व्हाट इज़ प्रिसाइज, व्हाट इज़ टू द पॉइंट. तो जितने भी आपने सीखे हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, दैट शुड बी इन योर abstract. Now, how will you define a good abstract? What are the elements of a good abstract? Write down the first 3 bullets. एक अच्छे एब्स्ट्रैक्ट की पहचान क्या है? A good abstract uses one well-developed paragraph. एक पैराग्राफ developed paragraph होता है. That is coherent and concise and is able to stand alone as a unit of information. और अपने आप में complete होना चाहिए, stand alone होना चाहिए. I want to see people writing. स्क्रीनशॉट से मतलब हमको नहीं है. मैथ स्क्रीनशॉट से नहीं सीखा जाता है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक अच्छा वेल डेवलप्ड पैराग्राफ
जो कि कंसाइज है, कोहेरेंट है, लिंकिंग है और अपने आप में कंप्लीट है, स्टैंड अलोन है। सेकंड, a good abstract covers all the essential academic elements। मतलब जो चीज़ चाहिए आपके रिपोर्ट के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, ताकि कोई पढ़ने वाला आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपके आर्टिकल को पढ़े। इट मीन्स इट शुड बी वेल फॉर्म्ड। उसका बैकग्राउंड आपको बताना है, पर्पस ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट बताना है, फोकस बनाना है, आपका इस प्रोजेक्ट में फोकस कहाँ है, क्या है, मेथड आपने क्या यूज़ किया है, आपने कैसे रिपोर्ट बनाई है, कहाँ कहाँ पढ़ा है, कहाँ कहाँ देखा है, रिसर्च किया है, क्वेश्चनेयर दिया है, इंटरव्यू लिया है, हाउ यू हैव डेवलप्ड दिस प्रोजेक्ट एंड देन व्हाट रिजल्ट्स आर देयर। रिजल्ट्स आप बताएंगे नहीं, लेकिन आप बता देंगे कि रिजल्ट्स भी इंक्लूडेड हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट इज A good abstract is written in plain English and is understandable to a wider audience। मतलब आप इस तरह से लिखिएगा ताकि लोग समझ सके आपने लिखा है क्या। It should be in simple English। मतलब टारगेट ऑडियंस को समझ में तो आ ही रहा है, लेकिन आपका एक्सपर्ट्स को समझ में आ रहा है। एक्सपर्ट्स के लिए आप लिखते हैं और एक जनरल लोगों के लिए भी लिखते हैं ताकि लोग समझ सके आपने क्या लिखा है। इट शुड बी इन वेरी सिंपल इंग्लिश। स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑफन यूजेस पैसिव स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन फाइंडिंग्स फोकसिंग ऑन द इश्यूज रादर दैन द पीपल। तो आपका फोकस होना चाहिए इश्यूज पे, प्रॉब्लम पे, कंसर्न पे, पीपल पे नहीं। और वही लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट में, जो लैंग्वेज आपने यूज़ किया है अपने रिपोर्ट में। सिमिलर वर्ड, सिमिलर सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, और उसको भी और सिंप्लीफाई करके अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं आप। It does not include any referencing. In publications such as journals, it is found at the beginning of the text. जैसा कि मैंने कहा था, abstract should be in the beginning. और सबसे ज़रूरी बात, contains no information not included in the paper। The third जो बुलेट्स आप देख रहे हैं कि जो भी झूठी बात आपको नहीं लिखनी है, जो आपके रिपोर्ट में नहीं है, that should never be put in the abstract। So today you came to know about how to write an abstract, what are the things important in writing an abstract, and yes, in the next class we'll see the two types of report, which is the descriptive and informative। Another thing about abstract is to make it very simple, you must have seen movies। फिल्में देखते होंगे आप लोग,
यस नो? आपने ट्रेलर देखा है किसी फिल्म का? Yes, ma'am. देखा है. अब आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेलर एंड अ मूवी? ब्रीफ समरी होती है टोटल मूवी का. तो क्या ट्रेलर देख के आप डिसाइड करते हैं फिल्म देखने लायक है या नहीं? यस नो? तो ट्रेलर में वो क्या जो बनाते हैं ट्रेलर, वो क्या क्या चीज़ें डालते हैं उसमें? कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि अट्रैक्ट कर सके, जिसको देख के आप डिसाइड करोगे कि मुझे ये फिल्म नहीं देखनी है या मुझे ये फिल्म देखनी है. सिमिलरली योर एब्स्ट्रैक्ट इज़ लाइक अ ट्रेलर. उसको इतना अट्रैक्टिव बना के लोग लिखते हैं ताकि पीपल आर कंपेल्ड कि नहीं, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है? नाउ यू टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? What did you understand? Tell me. कुछ नहीं. It is the gateway that provides the reader, if the reader is going to read or writing or not. It is written as the last but is read by the reader first. It should compel the reader, it should attract the reader that our writing is read or not. Yes. That's good.